Hello, dear students. So let's start with our English reader. First flight, the glimpses of India. So there are three parts out there. The first part, a baker from Goa, the Kurds, the tea from Assam, by Anup Kumar Datta. So let's start with our introduction of the whole chapter. Yes, the first part, a baker from Goa. So, Lekio introduces us the traditional Goan villagers and bakers who still has an important place in the society. So, the chapter consists of the author's nostalgic memories of childhood associated with particularly with the baker and goes on to the describe how the baker of days looked like and what their association with the कंटेम्पररी सोसाइटी वॉज यस इस पूरी चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि जो बेकर फ्रॉम गोवा थे जो बेकर थे वहाँ के जो कि एक बड़ी स्पेशल ब्रेड बनाया करते थे लोव्स बनाया करते थे वो किस प्रकार से फेमस थे किस चीज़ के लिए फेमस थे तो पूरा इंट्रोडक्शन हम इसके ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट में जानेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद आवर beautiful summary of the first paragraph. Yes, you can see into your textbook, and after that you can understand the whole summary of the chapter in very short. So bakers in old days, Goa. So the Goan people are quite attached to their colonial past under the Portuguese rules, and they still remember those days as good Portuguese days with the Portuguese peoples with their and their famous loaves of bread. So Lucio Rodriguez as the good old Portuguese days and remember his old days in Goa when the village baker occupied an important place in life. So, although with the passage of time, people do not eat so much bread, and yet some village bakers are still there. So, the Portuguese were famous for preparing the loaves of bread क्योंकि famous थी वहाँ की bread so they left Goa long ago and but the traditional work of the bakers can still be seen in Goa so the age old furnace still exist with the still in uses so the process of baking is still the same like it was during the Portuguese एक वर्ड बार बार बीच में आ रहा है जिसको हम कहते हैं हमारी पूर्ण स्मृति यानी कि हमारी दिमाग में याद करने वाली पुरानी पुरानी मेमोरीज यानी कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था टाइप का डायलॉग होता है ना तो यहाँ पे इसी वर्ड का यूज़ बार बार किया जा रहा है so it shows that the bread making is still popular in Goa and someone in the baker's family still carries on the business and the tradition. Yes, you can see into your textbook uh, in to understand the whole summary of the chapter and the next हमारा आता है baker's daily visit so there are some headings which can help you to introduce the whole question and answer in a very short way and you can already now you can already expert to make answers by yourself after joining my SKI यस बिकॉज हम पहले क्लासेस में सारे आंसर्स अपने आप बनाने के सारा प्रोसीजर आपको बता चुके हैं सो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेकर्स डेली विजिट्स जो गांव में बेकर्स आया करते थे रोज उनकी लाइफ रोजमर्रा की लाइफ क्या थी वो लोग क्या करते थे और विजिट में उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी विजिट हुआ करती थी उनमें वो लोग क्या किया करते थे सो आफ्टर यूजिंग दीज हेडिंग्स दीज पैराग्राफ्स एंड दीज समरी आफ्टर हियरिंग you can easily make your answer by own so there is no any need to learning any answer because we are going to describe whole headings in a very simple words so this is our first heading that baker's daily visit भाई क्या करते थे वो लोग so the author recalls how a baker would visit village twice a day and carrying a bamboo stick and
द ऑथर एंड द अदर वुड वेक अप बाय साउंड ऑफ स्टिक। उस स्टिक में से एक झन 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 की साउंड आया करती थी, और वो स्टिक बड़े स्पेशल तरीके से बनाई गई थी, किसके द्वारा? बेकर्स के द्वारा, ताकि वो जब भी आपकी कॉलोनी या आपकी जगह पर सोसाइटी में आए तो सब लोगों को दूर से ही पता चल जाए कि भाई बेकर आ गया है, और अपने लोव्स ले लो, अपने ब्रेड ले लो, जो भी आपको वट एवर खाने हैं। सो यहाँ पे स्टिक को डेस्क्राइब किया गया है। वाइल द सर्वेंट फ्रॉम द डिफरेंट हाउसेस बॉट लोव्स and the author would run to the baker to buy bread bangles, and baker's bamboo stick was a special one as it produced the sound like jang jang. Yes, I describe about this sound. So when backed on the ground with the one hand, the baker wound support to the basket of the bread on his head, and next other he would strike the ground with the bamboo, and whenever someone come to him by bread, he placed the basket on the bamboo, and the author and the other looked into the basket. And in those sometimes it was the fashion to eat bread and with the hot tea. ये फैशन तो खैर आज भी है, आज भी बहुत लोग जो हैं चाय के साथ में ब्रेड डिबो डिबो के खाते हैं। ये फैशन, ये कल्चर आज भी है, और ये कल्चर तब भी था। तो उसी कल्चर के बारे में बताया जा रहा है कि भाई सब लोग जैसे उसकी झनझन की आवाज सुनते थे, दूर दूर से लोग भाग के दौड़े दौड़े आते थे, और उसकी ब्रेड यानी कि उसकी बास्केट में ताक झांक शुरू कर देते थे कि वो कौन कौन सी ब्रेड आज लेकर के आया है। और उसमें से एक अपने ऑथर भी हुआ करते थे, जो कि उस ब्रेड का बहुत बेसब्री से इंतजार किया करते थे। सो द ऑथर वॉज फॉन्ड ऑफ ब्रेड दैट ही वुड नॉट इवन ब्रश विद टीथ बिफोर ईटिंग इट। यस, कहा गया है कि भाई जो ऑथर थे ना, ऐसा होता है ना कि जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, हमारी खाने की अचानक कोई फेवरेट चीज आपकी टेबल पे आ जाती है, तो आपको लगता है कि यार ब्रश व्रश तो हम बाद में कर लेंगे, भाई पहले इसको निपटा लो, खा पी लो, कभी खत्म हो जाएगी। ऐसा होता था ना। तो यहाँ पे आपके इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि जो ऑथर थे वो बिना ब्रश करे ही बाहर आ जाया करते थे, और अपनी ब्रेड को चूज करके फटाफट ले जाया करते थे, क्योंकि भाई उसकी ब्रेड बहुत ज्यादा मोस्ट वांटेड थी, और एकदम ही उसकी टोकरी खत्म हो जाया करती थी। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है हिज इम्पोर्टेंस। भाई उसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत होगी ना, लोग बिना ब्रश करे ही उसकी ब्रेड खाने को राजी हैं। सो हिज इम्पोर्टेंस, द ऑथर एक्सप्लेन्स हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द विलेज बेकर फॉर द एसोसिएशन, एंड द विलेजेस वर क्वाइट फाउंड ऑफ द स्वीट्स ब्रेड नोन एज द बोल, एंड मैरिजेस गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट दी स्वीट्स ब्रेड। यानी कि शादियों तक में चलती थी भाई ब्रेड उस टाइम पे, तुम समझ रहे हो ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी वो, मतलब टेस्टी थी। एंड सैंडविचेस, केक्स एंड बिलोनियाज, एंड देयर वाज द मस्ट ऑफ क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। भाई फेस्टिवल्स में वो खाई जाने वाली एक स्पेशल प्रकार की मिठाई के रूप में भी जानी जाती थी। क्या चीज? वो ब्रेड जो राउंड राउंड होती थी, थोड़ी सी मिठास लिए हुए होती थी, और थोड़ी सी सॉल्टी भी होती थी। सो these were made with the bread. Thus, the presence of the baker furnace was very essential in each village. On all associations, the villagers needed one or another type of cake which could be baked in the furnace. तो यहाँ पे बताया गया है जो फ्रांस में जो ब्यूटीफुल तरीके से ब्रेड बनाई जाती थी, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी थी कि शादी ब्याह के एक शुभ मौके पर भी या त्योहारों के मौके पर भी लोग भाग भाग के उनकी ब्रेड का इंतजार किया करते थे। उनकी झंझन वाली आवाज से दौड़े भागे चले आते थे, और बिना ब्रश करे पूरी ब्रेड खरीद के खा भी लिया करते थे। किसके साथ में? हॉट कप ऑफ टी के साथ में। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है हिज आउटफिट। भाई जानते हैं वो किस प्रकार के ड्रेसेस पहनते थे। सो द बेकर यूज टू वियर अ स्पेशल peculiar dresses known as the kabal, and it was the single piece of long frock that reached down the knees during author's childhood। यानी कि इस टाइम पे जब लोग कैपरीज पहनते हैं, उस टाइम पे जो हमारे बेकर्स हुआ करते थे वो कबाल टाइप की ड्रेस पहना करते थे, और वो कबाल उस टाइम में था, और आज के टाइम में उसको बस रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कैपरी से। जैसे कैपरी होती है ना, नी तक आती है वो, बड़ी स्मार्ट सी ड्रेस होती है, इधर भी पॉकेट होती है इधर भी पॉकेट होती है, वो इस टाइप की एक ड्रेस पहन करके आया करते थे, जिसका नाम था कबाल, KABAL। सो बेकर्स बेकर्स वोर
tortoise and which were the shorter than full length and the longer than half pants. And even today, if someone wears a half pant and he is said to be dressed like a पैडर, तो एक पैडर नाम का एक इस टाइप की ड्रेसेस हुआ करती थी जिसको वो उस टाइम में कबाल के नाम से जानी जाती थी। और आज के दिनों में अगर हम देखें तो लोग जो एक शॉर्ट कैपरीज पहनते हैं वो इस टाइप की एक ड्रेस पहना करते थे जो कि वन पीस ड्रेस हुआ करती थी और बहुत अलग दिखने वाली हुआ करती थी, जो कि बेकर को उनकी छवि अलग से दर्शाने के लिए हेल्प करती थी कि भाई बेकर आ गया। कुछ लोग होते हैं ना शादी ब्याह में जो लोग लाइट्स लेके चल रहे होते हैं इधर और उधर, तो उनकी ड्रेसेस कुछ अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बस उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। जो बेकर्स की ड्रेसेस थी वो भी बड़ी डिफरेंट थी, उस टाइम में वो कबाल नाम से जानी जाती थी और आज के टाइम में देखें तो वो एक कैपरी होती है जो हम लोग भी पहनते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है प्रॉफिटेबल बिजनेस। देखिए, हट्टे कट्टे मोटे ताजे हुआ करते थे बेकर्स, यानी कि उनका जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल था। ऐसा नहीं है कि भाई बेकरी का काम कर रहे हैं तो भाई ऐसे ही कुछ भी पहन लेते होंगे, पतले दुबले से होंगे, सब लोग सोचते हैं ना कि भाई वो ऐसा नहीं भाई, अच्छे खासे देखने में मतलब तंदुरुस्त हुआ करते थे। क्यों भाई? उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस था। जैसे ब्रेड लेके आते थे वो लोग इतने प्रेम से वो ब्रेड बनाया करते थे, इतनी रुचि लेके बनाया करते, इंटरेस्ट तरीके से बनाया करते थे कि सबको वो इतनी पसंद आती थी कि एक झटके में उसकी बास्केट पूरी खाली हो जाया करती थी और वो भाई प्रॉफिटेबल बिजनेस था। तो इसके बारे में बताया गया है कि द बेकर्स बिजनेस वाज कंसीडर्ड प्रॉफिटेबल एंड ही यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और ऐसा नहीं है कि भी हाथों हाथ पैसे दे दो, भाई ऐसा हुआ करता था कि वो ना महीने के भी पैसे, जैसे हमारे बिजली के बिल आते हैं ना, हमारे अलग अलग तरीके के जो बिल आते हैं, हमारे जो ये डेयरी का बिल आता है, कितने सारे बिल्स होते हैं अपने पास में हर महीने के आते हैं ना, इस तरीके से ही जो बेकर था भाई हाई फाई टाइप का था, तो उसका भी हर महीने का ही लोगों का बिल हो जाया करता था और वो महीने के एंड में सबसे अपने पैसे ले लिया करता था। सो उसका जो बिजनेस था वो ब्रेड बेचने का बहुत प्रॉफिटेबल था। सो इन द हाउस होल्ड द बेकर्स मंथली accounts used to be recorded on some walls in pencils, or baking was the profitable business in those days, and the baker used to be well off and their families never strive, and their plump bodies shown that they were happy so much entirely। यहाँ बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जो बेकर्स थे उनकी प्रॉफिटेबल बिजनेस था और उनकी फैमिली को उस बिजनेस के चलते किसी भी प्रकार के सरवाइव करनी नहीं पड़ती थी, यानी कि वो लोग वेल मेंटेन्ड और एक अच्छा जीवन बिताया करते थे। वो आज के टाइम के नहीं हुआ करते थे बेकर्स। तुम सोचो कभी कि भाई वो ऐसे ही होंगे, भाई ब्रेड बेच रहे हैं, नहीं नहीं भाई, उनका बिजनेस बहुत अच्छा था। महीने के एंड में बिल बनता था, सोच लो, और सब लोग अपने अपने कैलेंडर पे या दीवार पे पेन या पेंसिल से की सहायता से बिल लिख लिया करते थे कि भाई इतने रुपए देने हैं, इतने रुपए हो गए, इतने रुपए उसके पूरे चार्ज लगेंगे। तो ये बताया गया है कि वो किस तरीके से पूरा ब्यौरा बना के रखते थे उसके मंथली इनकम का। थीम ऑफ द स्टोरी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद, तो द थीम ऑफ द चैप्टर इज नॉस्टैल्जिया विद द nostalgic Netra by the Alecchio Rodriguez, and primarily focus on the baker's importance in Goan society during the bygone era. So every one of us nostalgic about the thing or the others. So it is human tendency to fondly remember things, even people or places of the past with which of has been associated a walk down the memory lane and refreshless house that faded images of the past, and one feels rejuvenated. So it was the nice time out there जब लोग सोचते थे, पुराने दिनों को याद करते थे। जैसे आपने किसी सीरियल में देखा है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो जो टीचर हैं, वो जो टीचर का क्या नाम था, आई रिमेम्बर दैट, मास्टर भिड़े। तो वो कहते हैं ना, हम वो तो हमारे ज़माने की बात है, हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट बहुत पेट डायलॉग है ना कि हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था, तो यहाँ पर जो राइटर्स है, जो फैमिली है इनकी, की और डैडशीज की, वो इसी चीज़ को दर्शा रही है कि वो पुराने दिनों को याद करते हुए बताती है कि भाई हमारे ज़माने में तो जो ब्रेड मिलती थी वो इस ज़माने में भी मिलती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो ब्रेड की छाप हमारी दुनिया में भी देखने को मिलती है। वो अपने ज़माने की बात कर रही हैं। सो
Lyukio recalls the memories of the bakers of Goa and gone on to describe their importance and place in the society. We get a peep into the traditional baker's life. So his style and clothing and marketing skills, products, and I can say the social status was awesome and outstanding. Yes, you can understand that on that time जो बेकर्स थे उनकी लाइफ कितनी फुलफिल थी कि भाई उनको वो मोटे ताजे हुआ करते थे और उनकी फैमिली भी जो है बड़े अच्छे तरीके से रहती थी। इस चीज़ का आइडिया हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि वो लोग महीने के एंड में यानी कि हर 30 तारीख को या 1 तारीख को सबके बिल जमा करते थे, अच्छी इनकम हुआ करते थे। तो मैसेज हमें इस पूरे चैप्टर के फर्स्ट पार्ट से क्या मिलता है? सो the society has a rich value system, and we must also live together with love and follow the rituals passed on to us and throughout generations. Modernity about must not be at the cost of forgetting our own traditions. So the elder have a wisdom to enrich the younger generations. Ratika viewers. So there must be a balance between the traditional and the social ethos and modern viewers. तो यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बो दिखाया गया है तीन चीज़ों के बीच में, यानी कि जो यंगर जनरेशन है अपनी एनरिचमेंट है उनका, और जो पुराने टाइप के जो लोग हुआ करते थे उनकी 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 बातों को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के आज तक वो एक ब्रेड का जिक्र हो रहा है जो पुराने ज़माने से लेकर के आजकल के लोग भी इस चीज़ को चलाते आ रहे हैं। वो एक स्पेशल तरीके के लोव्स की बात करते हैं उस ब्रेड की जो कि बहुत स्वीटन हुआ करता था और खाने में बहुत दिलचस्प हुआ करता था। ना ही कि ये ब्रेड एक नॉर्मल लुक में हुआ करती थी, एक राउंड राउंड डोरा केक टाइप की हुआ करती थी जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी थी। लोग चाय में डुबो डुबो करके उसको खाया करते थे, यानी कि ब्रेड का नाम सुनते ही लोगों के घरों में चाय बन जाया करती थी और वो लोग उस चीज़ को बहुत इंजॉय करते थे। आपके पूरे फर्स्ट सिनेरियो में यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट में द बेकर्स में बताया गया है कि पूरी बेकर्स की लाइफ क्या है। तो ब्यूटीफुल मैसेज दैट वी फाउंड इन द स्टोरी इज द मॉडर्निटी मस्ट नॉट बी द कॉस्ट ऑफ फॉर गेटिंग अवर ओन ट्रेडिशन। सो जो आजकल का आधुनिकतम समाज है वो हमारे जो पुराने कल्चर को नहीं भूला है और आज भी उस कल्चर को लेता हुआ चल रहा है अपने साथ। ये ब्यूटीफुल मैसेज हमें इस स्टोरी से मिलता है फर्स्ट पार्ट के। सो यू कैन लिसन वेरी केयरफुली अबाउट ऑल दीज हेडिंग्स बिकॉज these headings are not occupied from your textbook. All these are very important to make your answers by yourself. Yes, it is very important. By using these headings you can understand the whole chapter of the story, and you can make all answers by yourself instead of learning all answers. So this is nowadays this is very tough work that learn all answers by yourself, because answer does not contain only 1 or 2 or 3 pages. It may be 4 or 5 pages. It can be occupied 4 and 5 pages. So make all answers for lengthy and in a summarical language. You can understand the whole headings very deeply after listening my this lecture. So the characteristics of the chapter is here. So the Goan bakers refers the traditional baker of Goa from Lucio fondly the remembers from the childhood. Our traditional baker was the part of parcel of Goan society, and the author recalls how a baker would visit a village twice a day and carrying a bamboo stick in his hand, and he used to carry a special bamboo stick as it produced the sound of jang jang jang. सो उसका एक स्पेशल तरीके का बैम्बो हुआ करता था जो कि अंदर से खोखला था, और जब भी वो उसको ज़मीन पे पटकता था तो उसके अंदर से आवाज़ निकलती थी झेंग झेंग की, जिसकी वजह से जो लोग अंदर सो भी रहा करते थे वहां तक वो कानों में आवाज़ पड़ जाया करती थी और लोग दूर दूर से भाग के आ जाया करते थे उसकी ब्रेड और लोब्स को खरीदने के लिए जो कि वो अपने साथ लेकर के आया करता था। सो वैन बैंक्ड ऑन द ग्राउंड एंड विद वन हैंड ऑफ द बेकर वुड सपोर्ट द बास्केट ऑफ ब्रेड on his head, and with the other he would sticks the ground with the bamboo. So whenever someone came to him buy bread he placed the basket on the bamboo.
वो अपने सिर पे एक बास्केट लेके घूमता था जो कि ब्रेड से भरी हुई हुआ करती थी। लेकिन जब भी कोई इंसान के पास वो ब्रेड खरीदने के लिए आया करता था तो वो अपने बैम्बो की सहायता से सिर पे से वो टोकरी नीचे की ओर हटा लिया करता था, यानी कि अपने बैम्बो स्टिक के ऊपर रख लिया करता था, उससे उसे टेक लिया करता था और उसमें से ब्रेड निकाल के लोगों को दिया करता था। सो द बेकर यूज टू वियर स्पेशल पर्टिकुलर ड्रेस नोन एज द कबाल, वो हमने अभी डिस्कस किया है, जस्ट लाइक अ कैपरी, and it was a single piece long frock type, and that reaches down the knees. And during author's childhood, bakers worn trousers which were shorter than full length and longer than half pants. And even today, if someone were a half pant, he is said to be the dress like the padder. And the baker used to be well off and their families never strived, because अभी हमने डिस्कस किया कि वो उनके काफी अच्छा खासा बिजनेस था, तो उनकी जो फैमिली थी वो बहुत अच्छी तरीके से रहती थी। एंड देयर प्लम्स बॉडीज शोड दैट दे वर हैप्पी, और उनकी चबी बॉडी और उनका जो हेल्दीनेस थी वो दर्शाती थी कि वो लोग एक अच्छा जीवन यापन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग केवल ब्रेड व्रेड बेचते हैं या तो उनका बिजनेस छोटा होगा, ये नहीं था। उनका बिजनेस बहुत अच्छा था, वेल मेंटेन था, और उसकी वजह से उनके जो घर के लोग भी थे वो किसी भी प्रकार की समस्या से जूझते नहीं थे। वो लोग आराम से और काफी फुलफिलनेस से अपने उसमें रहा करते थे अपने घर में। तो गोवान के बेकर्स के बारे में डिस्कस किया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इस पूरे चैप्टर की ये है फर्स्ट पार्ट में आपकी ग्लिम्स ऑफ इंडिया की, कि बेकर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, बेकर की ड्रेसेस के बारे में बताया गया है, बेकर की बेम्बो स्टिक के बारे में डिस्कस किया गया जिसमें से झैंग झैंग की आवाज़ हुआ करती थी, और बेकर्स की एक लोफ के बारे में, स्पेशल लोफ जो कि राउंड शेप हुआ करता था जिसमें थोड़ी सी मिठास हुआ करती थी चीनी की, और वो लोग चाय में डिबो डिबो करके उसको खाया करते थे और इन्जॉय किया करते थे। और जब भी उन लोगों को अपने पसंद की कोई भी चीज़ दिख जाती थी तो वो बिना टीथ करे यानी कि बिना ब्रश किए भी और उस चीज़ को खाने के लिए अगर रहा करते थे। वो इतनी टेस्टी हुआ करती थी कि लोगों के मुंह में अपने आप से पानी आ जाया करता था, लोग उसकी टोकरी में झांकने लग जाया करते थे कि भाई ब्रेड वाला आ गया, भाग करके अपना सामान उठा लो। सो टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, जो कि इसी चैप्टर से रिलेट है, द कूर्च, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से विद हेडिंग्स अच्छे तरीके से समझ लेना। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट, the course of the chapter, the glimpses of India. Yes, of course, the next part of the chapter, the glimpses of India. Courge, just like also known as Kodagu, and he is small and is a small district of Karnataka. And yes, into the next lecture, we are going to describe the whole summary, introduction, characteristics, message into our next lecture of the chapter. So be continue and keep reading also.